اور باری باری ہر جانب منہ کر کے تماشائیوں کو تماشا دکھانے لگا۔ لوگ زور زور سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اب کوبرا سانپ نے اوپر کی جانب بلند ہونا شروع کیا۔ بلند ہوتے ہوتے وہ بالکل سیدھا عمودی کھڑا ہو گیا۔ اس کی صرف دم کا آخری حصہ زمین سے لگا تھا۔ پورا سانپ بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ کوبرا کا یہ تماشا شائقین کو محظوظ کر رہا تھا کہ اچانک کوبرا سانپ لرزنے لگا اور پھر بڑی سرعت سے اس نے اپنا پھنس سمیٹ لیا اور کنڈلی مار کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ہوتے ہوتے بالکل گول ہو گیا اور اس کا پھنس زمین سے جا لگا۔ سانپ کی یہ حرکت سپیرے کی توقعات کے خلاف تھی۔ وہ اور زور زور سے بین بجانے لگا، لیکن کوبرا ٹس سے مس نہ ہوا، جس پر سپیرے کو غصہ آ گیا۔ اس نے پاس پڑی پتلی سی چھڑی سے کوبرا کو ٹٹولنا شروع کر دیا تاکہ وہ پھر سے کرتب دکھائے، لیکن کوبرا زمین سے پھن لگائے جسم کو سکیڑے بیٹھا رہا۔ اس کا منہ اسی طرف تھا جدھر سانپوں کی دیوی شکنتلا تھی۔ کوبرا ناگن دیوی کی بو پا چکا تھا۔ وہ اب سپیرے کا حکم ماننے سے انکاری تھا۔ سپیرے نے ایک دو بار چھڑی سے سانپ کو ہلایا جلایا، لیکن اس کو خاموش پا کر ایک دفعہ قدرے زور سے چھڑی سانپ کی پشت پر ماری تو ایک دم کوبرا بچھڑ گیا اور پلک چپکنے میں کوبرا نے پلٹ کر پھن اٹھایا اور سیدھا سپیرے کے ہاتھ پر جا گرا۔ سپیرے کو زوردار طریقے سے ڈس لیا۔ سپیرا سانپ کی اس حرکت پر جہاں حیران ہوا، وہیں اس نے اضطراری طور پر اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں کوبرا کے ڈسنے سے نشان پڑ چکا تھا۔ نشان دے کر سپیرے کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور وہ اس کوبرے کے زہریلے پن سے بخوبی واقف تھا۔ ادھر کوبرا پھن زمین سے لگائے اس طرف رینگنے لگا جدھر شکنتلا کھڑی تھی۔ شکنتلا کوبرا کی بے بسی اور سپیرے کی مصیبت سے مسکرانے لگی۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ ظاہر ہو کر ناگن دیوی کا کردار ادا کرنا شروع کر دے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ اس طرح وہ عوام کے سامنے آ جائے گی اور کہیں یہ خبر ملکہ سلامبو یا ہمون جادوگر تک نہ پہنچ جائے، جبکہ شکنتلا تو اس وقت روپوشی کی حالت میں تھی۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ صرف سپیرے کا علاج کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں۔ ابھی وہ ادینہ کو کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اچانک بازار میں ایک شخص زور زور سے نوبت بجانے لگا اور پھر ایک اعلان ہونے لگا کہ بھائیو، رئیس شہر فرونہ مسز سلامبو کے مشیر خاص عزت مآب شامیان کی اکلوتی نوجوان بیٹی کسی پراسرار آسیب کا شکار ہو کر مرنے کے قریب ہے۔ رئیس شہر کا اعلان ہے کہ جو کوئی بھی اس کی بیٹی کا علاج کرے گا اسے آدھی جاگیر بخش دی جائے گی۔ شکنتلا نے یہ اعلان سن کر ادینہ اور شمالا سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم وہاں چلیں۔ ہو سکتا ہے کہ ملکہ سلامبو کا یہ مشیر خاص ہمارے لیے کوئی رہنمائی کر سکے۔ مشکل ہے، شمالا بولی، لیکن ہم بھی تو فارغ ہی ہیں، چلو شغل ہی رہے گا، ہو سکتا ہے کوئی سراغ ہی مل جائے اور ہامون یا ملکہ سلامبو کی کوئی کمزوری ہاتھ لگ جائے۔ یہ سوچتے ہی تینوں ایک ویران سی جگہ پر چلی گئیں جہاں شمالا اور ادینہ نے اپنا رنگ روپ بدلا۔ اب وہ دونوں مجذوب سی لگ رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے، کاندھے پر تھیلے، ادینہ کے شانے پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ شمالا کے ہاتھ میں ایک مریل کتے کی رسی تھی جو چاؤں چاؤں کرتا اس کے پیچھے پیچھے تھا، جبکہ شکنتلا اپنے اصلی روپ اور شاہانہ لباس میں ان کے ساتھ تھی۔ تینوں چلتے چلتے بازار میں آ گئی اور نوبت بجانے والوں کے پاس پہنچ گئیں۔ شکنتلا آگے بڑھی۔ اس کی قیمتی خوبصورت پوشاک اور سحر انگیز شخصیت کو دیکھ کر سب لوگوں نے جگہ بنا دی۔ چلو ہمیں لے چلو، ہم تمہارے رئیس کی بیٹی کا علاج کریں گے۔ رئیس کے ملازموں نے انہیں حیرت سے دیکھا کہ یہ تین لڑکیاں کیا علاج کریں گی۔ وہ کچھ مکمسے کا شکار ہو گئے۔ تب شکنتلا نے مونچھوں والے شخص جو شکل و حلیے سے ان کا سینئر نظر آتا تھا کہا، چلو جوان، ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے اور تم اور تمہارا رئیس ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ شکنتلا کے پر اعتماد اور انداز حکمانہ لہجہ اس شخص کو مرعوب کر گیا۔ اس نے فوراً بازار سے ایک بگی کرائے پر حاصل کی تو تینوں شیطان کی سالیاں اس میں سوار ہو گئیں۔ بگی انجانی راہوں پر چل پڑی۔ کوئی 1 گھنٹہ کی مسافت کے بعد وہ لوگ شہر سے قدرے ہٹ کر مضافات میں آ پہنچے اور پھر بگی ایک عالی شان حویلی کے سامنے آ کر رک گئی، جس کے دروازے پر 2 دربان تلواریں سونتے کھڑے تھے۔ حویلی کی چھت پر مصر کا سرکاری پرچم لہرا رہا تھا۔ دربانوں نے حویلی کے صدر دروازے کے دونوں کواڑ کھول دیے اور گھوڑے ٹپ ٹپ کرتے بگی کو کھینچ کر اندر پہنچ گئے۔ مہمان خانہ اچھا خاصا وسیع و عریض تھا، ہر چیز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ پردہ ہلا اور ایک ادھیڑ عمر سانولا دراز کا شخص جس کی آنکھوں میں پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی اندر آ گیا اور حیرانی سے ان تینوں کو باری باری دیکھنے لگا۔ آپ علاج کریں گی میری بیٹی کا؟ اس نے غیر یقینی انداز سے کہا۔ جی ہاں، شکنتلا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ہلاتے ہوئے بولی۔ اس شخص کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی شکنتلا کے وجود کا طواف کرنے لگی۔ آپ نومن نظر آتی ہیں، آپ کیسے علاج کریں گی؟ آپ کو کھجورے کھانے سے غرض ہے یا پیڑ گننے سے؟ شکنتلا نے زلفوں کو جھٹک کر انداز بے نیازی سے کہا تو رئیس شہر کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی۔ وہ شاید ایسی گفتگو کا عادی نہ تھا۔ رئیس شہر اور مشیر فرونہ تھا، اس نے تو ہمیشہ ادب اور احترامات ہی دیکھے تھے، لہٰذا وہ قدرے گرمی کھا گیا اور درشت آواز سے بولا، لڑکی تمہیں شاید پتہ نہیں کہ اس وقت بھی درجنوں حکیم، سنیاسی، بابے اور عامل میری بیٹی کا علاج کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ جنہیں اس دشت کی صحرائی کرتے بالوں میں سفیدہ آ گیا ہے،
वो लोग मायूस है, तुम कल की छोकरी क्या करोगी? मेरा ख्याल है जनाब आली, आप अपनी बेटी के इलाज से ज्यादा अजीज अपने एहतराम को समझते हैं, इसलिए मेरे लहजे से गर्मी खा गए। लेकिन याद रखिए, हम तो इन कामों में पड़ते ही नहीं। ये जो दो मेरे साथ हैं, ये आपको बज़ाहिर मजजूब और पगलियां नजर आ रही हैं। दरअसल ये अपने अपने फन में ताक ऐसी बलाएं हैं कि बड़े से बड़ा मुआलज भी इनके सामने पानी भरता है। ये शकुंतला अदीना की तरफ इशारा करके बोली, ये हर बीमारी का इलाज जानती है। और वो शकुंतला शिमाला की तरफ देखकर बोली, जादू की कार्ड पर अबूर रखती है, और मैं हर असेब और जिन्नात से बखूबी निमटना जानती हूँ। शकुंतला पुरअतमाद और पुरगुरूर लहजे में बोली, आओ फिर मेरे साथ। तीनों रईस से शहर के पीछे पीछे चल पड़ी। कमरे में दाखिल होते ही शकुंतला ने देखा कि एक कशादा आरामदेह मुसहरी पर एक जवान सा लड़की जंजीरों से बंधी लेटी है और उछल कूद कर रही है। इसके हलक से फलक शगाफ चीखे, मुगलजात और गंदगी उबल रही है। वो सबको गालियां दे रही थी। मुंह से झाग, उलझे बाल, पसीने से शराबूर चेहरा, आंखों के गिर्द से हल्के, अजीब वहशियाना कफियत थी। मुसहरी के गिर्द 6-7 बूढ़े तजर्बाकार लोग बैठे थे। शकुंतला समझ गई कि ये मुआलिज हैं। एक शख्स कुछ कूट रहा था, दवाइयां तैयार हो रही थी। एक आमलनुमा शख्स लड़की के सरहाने खड़ा मुसलसल कोई मंत्र पढ़ने में मसरूफ। लड़की देखते ही सैकड़ों साल वाली बूढ़ी रूह शकुंतला समझ गई कि ये लड़की बीमार नहीं, बल्कि इस पर किसी मावराई कुव्वत का कब्जा है। लिहाजा इसने फैसला कर लिया कि अदीना और शिमाला को दूर बिठाकर खुद ही इस आसेब से निमटेगी। लिहाजा वो ऊंची और करखत आवाज में बोली, सब लोग पीछे पीछे हो जाएं। शकुंतला का तहमकाना अंदाज बूढ़े मौलजों का मूड खराब कर गया। उन्होंने सवालिया नजरों से रईस शहर की तरफ देखा तो इसने भी इन्हें मसहरी छोड़कर पीछे हटने को कहा, तो सब ही बुरा सा मुंह बनाते हुए पीछे खिसक गए। शकुंतला ने शिमाला और अदीना को पास बुलाकर आहिस्तगी से समझा दिया कि इस लड़की पर जिनात का कब्जा है। मैं इसका मुकाबला करने लगी हूँ, लिहाजा होशियार रहो। दोनों ने इस तफामिया अंदाज में सर हिला दिया। अब शकुंतला ने कुछ पढ़कर अपने इर्द गिर्द उंगली से दायरा बनाया। जंजीरों में जकड़ी हुई नौजवान लड़की ने अब चिल्लाना छोड़कर कदरे गौर से शकुंतला को देखना शुरू कर दिया था और बड़े इन्हमाक से शकुंतला को देखने लगी, जो आलती पालती मारकर घुटनों पर हाथ रखे कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। और फिर अचानक लड़की की बाँछें खुलने लगी और इसने फलक शगाफ चीख मारी, जिससे कमरा गूंज उठा। और फिर लड़की के हलक से कहका बुलंद हुआ और वो जंजीरें तोड़ने की कोशिश करते हुए शकुंतला की तरफ लपकने की कोशिश करने लगी। इतनी देर में शकुंतला ने अपना जंतर मंतर मुकम्मल कर लिया था, लेकिन नादीदा दायरे से बाहर न निकली और वहीं खड़े खड़े दोनों हाथों को लड़की की तरफ करके झटका तो इसकी तड़प में अचानक इजाफा हो गया और चीखें कई अंदाज में निकलने लगी और लड़की अपनी बंदिशों को झटके दे देकर आजाद करने की कोशिश करते शकुंतला को गजबनाक अंदाज में देखने लगी। लड़की की बदली हुई हालत और अपनी तरफ मतवजा पाकर शकुंतला जहर खंत अंदाज में मुस्कुराई और इसके लब गोया हुए, तू जिन है या बदरू, अब तेरे पास दो ही सूरतें हैं, या इस लड़की को छोड़ दे या भस्म होने के लिए तैयार हो जा। शकुंतला का ये कहना था कि लड़की भी बोल उठी, लेकिन आवाज मर्दाना थी। क्यों अपनी मौत को आवाज देती हो लड़की? क्या तुझे मालूम नहीं कि हम कौन हैं? हम हैं कोकाफ के बदमाश। इस लड़की को हमने पसंद कर लिया है। अब दुनिया की कोई ताकत इसे हमसे नहीं छीन सकती। हम तुझे आखिरी मोहलत देते हैं कि लड़की के जिस्म से निकलकर फरार हो जाओ, वरना इबरतनाक मौत के लिए तैयार हो जाओ। शकुंतला गरजी, लेकिन अब इसकी आवाज की गूंज खत्म भी ना हुई थी कि रईस की लड़की एकदम उठी और अपना मुंह शकुंतला की तरफ करके जोर से अपने मुंह से फूंक के अंदाज में हवा निकाली तो गंदगी का एक रेला इसके मुंह से बरामद हुआ, जो देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गया और आग का ये बगोला शकुंतला के गिर्द लपेटा लेकर सुर्ख से सुर्ख तर होता चला गया। लेकिन शकुंतला के गिर्द खींचे गए दायरे के अंदर दाखिल ना हो सका। लेकिन शकुंतला चूंकि होशियार थी और ऐसे शब्दे इसके लिए मामूली थे, लिहाजा इसके एक ही इशारे से ही शोले नरम पड़ गए और फिर लम्हों में आग गायब हो गई। अब शकुंतला की बारी थी। इसने बावाज़े बुलंद अपने मोकलों को तलब किया, क्योंकि वो भी जिन्नात थे। शकुंतला जानती थी कि लोहे को लोहा काटता है, लिहाजा शकुंतला के हुक्म पर जिन्नात जाहिर हो गए और आतिशी कोड़ों से लड़की को पीटने लगे। इनके हाथों में ऐसे हंटर थे जिनकी चाबकें लोहे से बनी थी और इनकी सुर्खी बताती थी कि वह इंतहाई गर्मा गर्म है। तीनों जिन्नात ने लड़की पर आतिशी कोड़ों की बारिश कर दी। ये हंटर पड़ने पर लड़की मर्दाना आवाज में टकराने और फड़फड़ाने लगी। जंजीरों में बंधे हाथ पांव को जोर जोर से झटकने लगी। इसके जोरदार झटकों से जंजीरें टूटने लगी और हर तरफ छनन छनन की आवाज आने लगी। जंजीरें ये खौफनाक झटके बर्दाश्त न कर सकी और इनकी टूट फूट शुरू हो गई। जंजीरों के टूटने से शकुंतला चुकन्नी हो गई। वो जानती थी कि अब ये जिन भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा, और वही हुआ। अचानक लड़की उछल कर मसहरी पर खड़ी हो गई। इसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ गया, आंखें ऊपर को चढ़ गई, एक होंठ नीचे लटक आया, नथने फूल कर कुप्पा हो गए
اور ان سے भाप निकलने लगी और फिर शकुंतला को लड़की के दोनों हाथों में भी आछी कोड़े नजर आए, जो इसने जवाबी कार्रवाई के तौर पर शकुंतला के मुहावजों पर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे शकुंतला के मोकलों की चीखें भी निकलने लगी। लेकिन साथ साथ वो भी लड़की पर कोड़े बरसा रहे थे। लेकिन लड़की के अंदर मौजूद जिन शकुंतला के मोकलों से ताकतवर साबित हुए। थोड़ी ही देर में शकुंतला के मोकल तीनों जिन्नात जमीन पर गिर कर तड़पने लगे और इनकी जारहियत पहले दिफा में बदल गई और फिर मजामत भी दम तोड़ गई। अपने बैरों का ये हशर देख कर शकुंतला तिलमिलाई और इसकी आंखों में तशवीश के आसार झलके। लेकिन अब इसके तरकश के तीर बाकी थे, बल्कि ये जिन्नात उसके पास बोनस में थे। इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू ही कहाँ किया था, और वो ये जान चुकी थी कि जिन कोई मामूली जिन नहीं, इसको जेर करने के लिए पूरी संजीदगी से गहरा वार करना पड़ेगा। सोचने के साथ साथ शकुंतला लब भी हिला रही थी। उसके हिलते लबों को देखकर लड़की के वजूद में हलवल करदा जीन भी चौकन्ना हो गया। शकुंतला का मंत्र मुकम्मल होते ही बादलों की कड़क पैदा हुई और जोरदार चटाक से लड़की के गिर्द धुएं का मरगोला पैदा हो गया। स्याह कड़वा कसैला धुआं इंतहाई गर्म, जिसकी करवाहट से लड़की को खांसी का शदीद दौरा पड़ गया। तो शकुंतला ने मौका जानकर फौरन ही अदीना और तीनों गुलाम जिनों को हुक्म दिया कि जैसे ही लड़की का वजूद छोड़कर भागने लगे, तुम सब ने इस पर पल पड़ना है और इसे भागने नहीं देना। शकुंतला का हुक्म सुनकर अदीना और तीनों जिन्नात अलर्ट हो गए और शकुंतला ने फौरी तौर पर जिन्नात को काबू करने का जाप जपना शुरू कर दिया। धुआं लड़की के गिर्द अपना हिसार ज्यादा देर कायम न रख सका। जिन भी बड़ी कुवत रखता था, लेकिन अब वो ये जान चुका था कि ये लड़की आम नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी बला है। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि राह फरार इख्तियार की जाए। ये सोच उभरते ही इसने धुआं मुकम्मल छटने से कबल ही लड़की का वजूद छोड़ दिया। लेकिन इससे कबल शकुंतला इसका ये बंदोबस्त भी कर चुकी थी। शकुंतला के गुलाम तीनों जिन संभल कर तैयार हो चुके थे, लिहाजा वो एक बार फिर आछी कोड़े लेकर लड़की के जिन पर पल पड़े। लड़की का जिन इस अचानक अवतार से घबरा गया, लेकिन फिर संभल कर बेजिगरी से इनका मुकाबला करने लगा। इस बार भी वो तीनों पर भारी था और जल्द ही तीनों जिन लड़की के जिन के ताबड़तोड़ हमलों की ताब ना लाते हुए फर्श पर गिर गए। लड़की का जिन अब अपने आछी कोड़े से इन तीनों के जिस्म नरम करने में मसरूफ था। इस स्ना में अदीना लड़की के जिन पर हमलावर हो गई और चारों तरफ से नदीदा पंजे लड़की के जिन को नोचने लगे। ये सूरत हाल देखकर लड़की का जिन फिर घबरा गया और राह फरार को ही इसने गनीमत जाना। लेकिन इसकी किस्मत ही शायद माठी थी। वो चारों तरफ से घेरे में आ चुका था, क्योंकि अब शकुंतला का मोकल काबू करने का जाप मुकम्मल हो गया था। शकुंतला ने जाप मुकम्मल करते ही लड़की के जिन पर जोर से फूंक मारी, जिससे जिनको अपनी टांगों से जान निकलती और ज़हन घूमता महसूस होने लगा। इसके साथ ही शकुंतला ने फतहाना कहका लगाया और अपने खींचे गए दायरे से बाहर निकल आई और हाथ बुलंद करके बोली, बस करो अदीना, अब ये ताकतवर जिन मेरा गुलाम बन चुका है। अब इससे किसी को कोई खतरा नहीं और ये मेरे हुक्म के बगैर अब अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकेगा। यह सारी माफूकुल फितरत जंग थी जो आम आदमी की आंख से ओझल थी। नतीजतन रईस शहर, इसके मुलाजिम और कमरे में मौजूद सारे हकीम आमल और मुंजम हक्का बक्का खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इन्हें बस शकुंतला दिखाई दे रही थी या अदीना, या इसके अलावा सिर्फ चीखो पुकार और शोर शराबा। बाकी तमाम अवामल इनकी नजरों से ओझल थे। वो तो समझ रहे थे कि अभी शकुंतला ने अपना काम शुरू करना है, लेकिन जब अचानक ही शकुंतला फतहाना कहका लगाया और अपने दायरे से बाहर आ गई, तो सब चौंक पड़े और लड़की को देखने लगे, जिसका जिस्म जिन की गुलामी से आजाद हो चुका था और वो आम लड़कियों के अंदाज और आवाज में ज़ारों की तार रो रही थी। लो जनाबे अली, शकुंतला रईस शहर की तरफ मुंह करके बोली, आपकी साहबजादी को कोई बीमारी ना थी। इस पर एक जिन कब्जा कर चुका था जो इस पर आशिक है। अब वो नामुराद मेरा गुलाम बन चुका है और आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। इसे सुला दें और मुकम्मल आराम करने दें और बेफिक्र हो जाएं और इन लोगों को वापस भेज दें। इनका यहाँ कोई काम नहीं रहा। शकुंतला हुक्मा वगैरह की तरफ इशारा करके बोली। रईस शहर मिकाल अपनी बेटी के ठीक होने पर बेहद मसरूर हुआ। वो तो शकुंतला के आगे बिछा जा रहा था। इसकी बेटी सम्मश एक अरसे के बाद सुकून की नींद सोई थी। शकुंतला की हदायत पर इसका कमरा खाली कर दिया गया था। रेशमी बिस्तर पर वो इस वक्त गहरी नींद के मजे ले रही थी। दो कनीजें से मोरशल झल रही थी। शकुंतला, शिमाला और अदीना इस वक्त मेहमान खाने में हरन के गोश्त के बने हुए कबाब के साथ दावत उड़ा रही थी। इसके बाद शकुंतला की फरमाइश पर अलग किस्म की शराब भी आ गई थी। मिकाल की बीवी उधेड़ उम्र औरत थी। वो भी शकुंतला की बलाए लिए जा रही थी। जब शकुंतला वगैरह दावत शरा से फारिग हुई तो मिकाल ने पूछा, मांगो बेटी, क्या मांगती हो? मैं तुम्हें अपनी बेटी को सेहत याब करने की खुशी में मुंह मांगा इनाम दूंगा। बोलो कितनी दौलत चाहिए? मिकाल की बात सुनकर शकुंतला मुस्कुराने लगी और फिर मिकाल की आंखों में आंखें डालकर मानी खेज अंदाज में कहने लगी, मिकाल साहब, इनाम तो मैं जरूर लूंगी और मुंह मांगा और लेकर रहूंगी, मगर दौलत से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं।
हीरे जवाहरात अशरफियाँ सोना चांदी की हैसियत मेरे सामने पत्थरों से ज्यादा नहीं। फिर मिकाल की समझ में कुछ ना आया था। फिर ये कि तुम मलका सलामू के मुशीरे हाथ हो। मुझे तुमसे मलका सलामू की जासूसी करवानी है। क्या क्या मतलब? मिकाल अपनी जगह से खड़ा हो गया। बैठो बैठो, आराम से बैठो, मेरी बात सुनो। शकुंतला पूरे सुकून में थी। बात यह है कि मैं मलका सलामू की जान की दुश्मन हूँ और मलका को कत्ल करना चाहती हूँ। कौन हो तुम? मिकाल अचानक चौकन्ना होकर कीनातूज नजरों से शकुंतला को देखते हुए कहने लगा, तुम मुझे गद्दारी पर उकसा रही हो। देखो मिकाल, शकुंतला अपनी जगह खड़ी हो गई और कदम कदम टहलते हुए जुल्फों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, मेरा नाम शकुंतला है। मैं ये चाहती हूँ कि मलका को कत्ल करके मुनफ्फस को फिरौन मिस्र बना दिया जाए। सलाम्बू, हामून, जादूगर, शिपशिपू और मरफा को भी मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि फिर मैं जिस काम के लिए हजारों साल दूर से यहाँ आई हूँ इसको तसल्ली से मुकम्मल करके वापस जाऊँ। खुलकर बात करो लड़की। मिकाल बरम हो चुका था। बात मैंने खुलकर की है, अमल तुम करोगे। और अगर ना करूं तो? मिकाल ने बात अधूरी छोड़ दी। ना करोगे तो तुम्हारी बेटी फिर इस जिन के कब्जे में आ जाएगी जो अब मेरा गुलाम है। देखना चाहते हो तो लो, मैं तुम्हें इस जिन का दीदार करवाती हूँ। ये कहकर शकुंतला ने लड़की के जिन को मुहातिब किया जो सामने ही फर्श पर अनदेखी जंजीरों में जकड़ा इधर उधर सर पटक रहा था। ए मेरे गुलाम जिन, तू जाहिर हो जा और सबको नजर आ। शकुंतला के कहने की देर थी कि जिन जाहिर हो गया। पतला काला भुजंग जिन, लंबी लंबी तारों जैसी टांगे और पतली तार जैसे हाथ, बड़ा सा मुंह। जाहिर हुआ तो मिकाल और इसकी बीवी की चीखें निकल गईं। जिन भां भां करके रो रहा था, जंजीरों में जकड़ा हुआ नजर आ रहा था। क्या नाम है तुम्हारा मेरे गुलाम जिन? शकुंतला कड़क कर बोली। तो जिन सहम कर खामोश हो गया, फिर आस्तगी से सर झुकाकर बोला, फशकल, मेरा नाम फशकल है। मेरे हुक्म पर क्या कर सकते हो? शकुंतला फिर कड़की। ए मेरी आका, तुम्हारे हुक्म पर मैं हर तरफ आग लगा सकता हूँ, लोगों को कत्ल कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी हवेलियां, महल और पूरा शहर तबाह कर सकता हूँ। और अगर मैं तुम्हें ये हुक्म दूं कि मिकाल इसकी बेटी और बीवी पर हयात तंग कर दो तो क्या कर सकते हो? मैं इनकी तमाम दौलत और इस हवेली के बखिए उधेड़ दूंगा। इन सबको खारिज ज़दा कुत्ते बना दूंगा। इन तीनों के जिस्मों के अंदर घुस कर इन्हें पागल कर दूंगा। क्यों मिकाल? शकुंतला अपनी जगह बैठते हुए बोली, आप बताओ, मेरी बात मानोगे या नहीं? और जो बात मैं पूछूं सच सच बताओगे या कुत्ते की जिंदगी बसर करोगे? मिकाल और उसकी बीवी जिन को देखकर बेहद खौफ का शिकार हो चुके थे। दोनों इस बाती अंदाज में थर थर कांपते हुए गर्दन हिलाने लगे। बहुत खूब, शकुंतला ने मुस्कुरा कर कहा, तुम बातों के भूत लगते हो। अब मुझे ये बताओ, मलका सलामू के महल में दाखिली और खारजी का कोई खुफिया रास्ता भी है? हाँ है। मिकाल की जुबान लड़खड़ा रही थी। शायद उसे ये खौफ था कि मलका सलामू इसकी गद्दारी का पता चला ले और तो वो उसको खड़े खड़े कत्ल करवा देगी, लेकिन शकुंतला के आगे वो बेबस था। मलका की ख्वाबगाह में 5 दरवाजे हैं। इनमें से एक दरवाजा ऐसा है जो महल से काफी दूर रेगिस्तान में जाकर निकलता है और दूसरे दरवाजे की सुरंग दरियाए नील के पास एक ऐसी जगह जाकर निकलती है जहाँ से दरिया एक मोड़ काटते हुए ऊंची जगह से आबशार की शक्ल में नीचे गिरता है। दरिया आबशार के नीचे दाएं पहलू में एक बहुत बड़ी चट्टान के पीछे है जो सिर्फ अंदर से खुलता है। दरवाजा आबशार के नीचे दाएं पहलू में एक बहुत बड़ी चट्टान के पीछे है जो सिर्फ अंदर से खुलता है, जबकि बाहर से वो भी एक चट्टान की शक्ल में नजर आता है। शकुंतला ने सर हिलाया। और हामून जादूगर से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? हामून जादूगर से मेरे ताल्लुकात हमेशा से ही कशीदा रहे हैं, वरना अपनी बेटी के इलाज के लिए मैं इससे मदद हासिल करता। वो मुझे और मैं इसे पसंद नहीं करता। मलका के दरबार में तुम्हारा असर और रसूख कितना है? शकुंतला ने फिर सवाल किया। मलका सलामू मुझे गिनती के इन मुशीरों में शुमार करती है जिन पर इसे अंधा एतमाद है। देखो मिकाल, मैं मलका सलामू का तख्ता उलटना चाहती हूँ। तुम मलका के दरबार में मेरे पहले आदमी और मलका के पहले गद्दार हो। मिस्र का अगला हुक्मरान मुनफ्फस सलामू का बेटा है। तुम मुनफ्फस से तन्हाई में मुलाकात करके इसे बता सकते हो कि तुम भी शकुंतला के आदमी हो। अब तुम्हारा काम ये होगा कि तुम 1-2 और दरबारियों को साथ मिलाओ, तुम्हें वजीर आजम बना दिया जाएगा। और अगर तुमने गद्दारी की कोशिश की तो फिर तुम्हारी बीवी और बेटी समेत तुम तीनों को मैं ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगी कि तुम जिंदा भी रहोगे, लेकिन इस तरह के तुम तीनों के हाथ पांव कटे हुए होंगे और आंखें हंजर से निकाल दी जाएंगी और मिस्र की गलियों में भीख मांगने, तड़पते सिसकते मांगते फिरोगे। शकुंतला के लहजे में सफाकी ऊद कर आई। हजूर, आप फिक्र न करें। मिकाल की बीवी ने पहली बार जुबान खोली। बिल्कुल आपके हुक्म पर अमल होगा और हम आपको सलामू की वो तमाम बातें जो वो अपने खास मशीरों से करती है मनोवन पहुंचाएंगे। ठीक है, अब हम चलती हैं, फिर किसी वक्त में अचानक मुलाकात को आऊंगी। चलो दीना, चलो शिमाला। शकुंतला ने इशारा किया। मलका सलामू एक खास खुफिया इजलास में मौजूद थी। वो एक तहत पर बराजमान थी जिस पर इंसानी खाल मुड़ी हुई थी। इसके दाएं तरफ सोने की कुर्सी पर शहजादी शिपशिपू और बाएं तरफ मरफा था। मरफा के बाद नफस की कुर्सी थी, जबकि शिपशिपू के साथ शाही जादूगर हामून
अपनी तमाम तर नहोस्तों समेत मौजूद था। ये तमाम एक ऊंचे चबूतरे पर थे। बाकी तमाम लोग इस चबूतरे से हटकर दरमियान में खाली जगह छोड़कर पीछे हाल में बनी कुर्सियों पर दर्जा ब दर्जा मौजूद थे। गहरी खामोशी थी। मलका के चेहरे पर गुस्से और तफक्कर के साए लहरा रहे थे। आखिर मलका की आवाज ने ही खामोशी का सकूत तोड़ा। वो कहने लगी, हमारे इल्म में ये बात आई है कि कुछ खुफिया हाथ हमारी हुकूमत को कमजोर करने के दर पे हैं। तुम सब मेरे इंतहाई करीबी बातमाद और बाख्तियार साथी हो। मैं तुम्हें मुतनबा कर देना चाहती हूँ कि गद्दार के लिए मेरे पास कोई जगह और कोई मौफी नहीं। गद्दार की निशानदेही होते ही इसको इसके पूरे खानदान समेत आग से दहकते कुएं में डाल दिया जाएगा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से महल के आसपास और इसके अंदर मशकूक किस्म की सरगर्मियां महसूस की जा रही हैं। तुम सबको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द गहरी निगाह रखो और किसी को भी कुछ मशकूक महसूस करते हो तो फौरन मुझे या मेरे मशीर खास मिकाल को आगाह करो, ताकि किसी भी फितने को उठने से कबल ही कला कमा किया जा सके। मलका के हिताब के बाद बारी बारी खास खास मशीर उठ उठ कर इसे अपने अपने मशवरे देते रहे और बाज एक ने एक दूसरे और बाज ने इजलास में से गैर हाजिर और निचले दरबारियों के खिलाफ और कई ने हुकूमती एहलकारों के खिलाफ दफ्तर शिकायत खोल दिया, जिसे मलका ने कई अफराद की गिरफ्तारी के अहकामात मौका पर जारी कर दिए। इजलास खत्म होने के बाद मलका महल के अंदर चली गई। सपसलार र्योका भी मलका के हमरा था। मलका ने उसे हदायत कर दी थी कि र्योका पूरे शाही महल और खास तौर पर हमारी ख्वाबगाह के गिर्द कड़ा पैरा होना चाहिए कि हम जहाँ जहाँ और जिधर जिधर जाएं हमारे इर्द गिर्द हमारे नजदीक कोई अजनबी फटक ना सके।